Okay, Swati, let's proceed ahead with your HR snap for the position of HR executive in NMDC. So, Swati, we start with your brief introduction. So, tell us about you and also tell us why you are suitable for this particular profile. So, tell us your background in such a way that makes you suitable for this particular position, HR executive. Awesome. First of all, good morning, sir. I am Swati Rajput. I was born up and brought up in Agra, Uttar Pradesh. I did my 10th and 12th from UP board, and then I did my graduation from Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra, and that and after that I did my post graduation from the same university in social work discipline. My specialization is IRPM, Industrial Relation and Personnel Management, and I qualified UGC NET this year. Your graduation is in BCom, Commerce stream. industrial relation. What do you understand by that term, Swati? What do you mean by industrial relations? Where employer and employee are working, and industrial relation is about a workplace where um, employer and employee working together. There are conflicts between them to resolve them, where trade unions are there. How can HR executive contribute in maintaining good industrial relations? uh, by providing conflict resolution machines like No, there is where no conflict. Suppose there is no conflict, but still you want to maintain a very good relations. as a facilitator, HR manager provide facilities to employees, and as a motivator, mentor, it provides many facilities to their employees. अच्छा, ये जो इंडस्ट्रियल रिलेशन आपने बताया, इसमें आपने दो स्टेक होल्डर बताए, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर. What are the other stakeholders in this? Government, What else? government, customers, government, Customer, governance और the employer, employee, government, and our customers. एक बहुत इंपॉर्टेंट को छोड़ दिया तुमने, वो बताओ. एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर के बारे में आपने नहीं बताया, स्वाति. What about suppliers and vendors? Okay, sir. You know what are the supplier and vendor? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ सप्लायर एंड वेंडर्स होते हैं. Very important. You know, they're very important because they deal with employees, but that particular their role is very important for management. Now, as you as HR executive, you deal with everyone. I give a small case study here. One of the employee in your organization is getting opportunity to study for management course in prestigious university in India. Okay. And he wants to go on industry sponsored category, right? He's working for the last many years in your industry. Very valuable employee. Management does not want to spare him because he's contributing a lot. But the employee, for his personal growth and after so many years of fatigue in job, he wants to go for that course. Management says no, but he wants to go. Now you have to decide. बताओ क्या करें? सर, हम उसको एक जैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में होता है, हम उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए बोल सकते हैं जाने के लिए, कि वो कुछ टाइम अपना बाहर जाके जो भी है पढ़े और फिर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे आके अपनी वो जो स्टडी है उसको यूटिलाइज करे अच्छे से, तो हम उसको ऑन द जॉब ये दे सकते हैं लीव. लेकिन मैनेजमेंट तो उसको लीव देने की फेवर में नहीं है. काम कर रहा है ना बहुत ज्यादा, उसके एब्सेंस में काम कौन करेगा? सर, वी प्रोवाइड हिम, जैसे कि आजकल चल रहा है वर्क फ्रॉम
एनीवेयर हम उसको ये फैसिलिटी दे सकते हैं ताकि वो अपनी स्टडी भी कर सके और मैनेजमेंट के लिए काम भी कर सके। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती तो झगड़ा ही नहीं होता कि वो स्टडीज भी कर ले और काम भी कर ले। अगर ऐसा होता तो मेरे को लगता है आपके पास आने की रिक्वायरमेंट नहीं होती स्वाति। अब हम सब लोग आपके पास आए हैं कि आप इस कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगी। मैनेजमेंट वो बहुत काम करता है, मैनेजमेंट उसको लीव नहीं कर सकती। और कुछ सजेस्ट कीजिए, आप कैसे अप्रोच करेंगे इस सारे प्रॉब्लम को? सर हम पहले हम उसको लीव नहीं देंगे जब तक कि हमको एक राइट पर्सन नहीं मिलता है उस जॉब के लिए। और हमको जब एक राइट पर्सन हम रिक्रूट करेंगे उसके प्लेस पे तब हम उसको लीव दे सकते हैं, अपनी जो भी फर्दर स्टडीज है वो वहां पे जाके कंप्लीट करे। लेकिन राइट कैंडिडेट कितने दिनों में मिलेगा आपको? सर हम इसके लिए सबसे पहले जो है इंटरनल सोर्सेज देखेंगे, जो हमारे बाकी के जो एम्प्लॉयज हैं हम उनको देखेंगे कि इनमें से कोई कैंडिडेट है जो इस प्रोफाइल को, इस जॉब को, इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम एक्सटर्नल रिसोर्सेज दे सकते हैं बाय एडवर्टाइजमेंट और आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में क्या जानती हैं स्वाति? ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर is the behavior of the person employed in the organization। जो लोगों का बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसा है, वो कितने मोटिवेटेड हैं, वो कितने अपने आप को मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में सुटेबल रहते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं वहां से। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेबर वेलफेयर? लेबर वेलफेयर जो है वो लॉज, लेबर के वेलफेयर के लिए कुछ लॉज गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं। तो उनके वेलफेयर के लिए जैसे कि उनको जैसे कि बहुत सारे एक्ट्स हैं, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट्स है, जैसे कि चिल्ड्रंस के लिए है, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट है आपका, पेमेंट ऑफ आप वेजेस मेरे को एक्ट। लेबर वेलफेयर लॉज के बारे में बता सकती हैं कुछ? जो लेबर के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट द्वारा लॉज इनेक्ट किए गए हैं, जो लीगल हैं, जिनके अगर वो उनका अगर जो है एम्प्लॉयर जो है वो फॉलो नहीं करता है उन प्रोविजंस को एक्ट के, तो उसको पनिशमेंट मिलती है। ओके ओके स्वाति, लेट मी गिव यू द फीडबैक। स्वाति, ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस में आपने ग्रेजुएशन किया है, इसको पढ़ो। मैं आज कुछ वीडियोस दे रहा हूं तुम्हें, मैं आज कुछ एचआर से रिलेटेड वीडियोस को पैनल पे रखवा रहा हूं, उनको गो थ्रू करना स्टार्ट करें आप। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस दो, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करना और रिलेशंस को और अच्छा बनाना, राइट? तो ऐसा नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो रिलेशन अच्छे हैं, ऐसा नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट ना भी हो सके लेकिन रिलेशन अच्छे होना अलग चीज है। एचआर एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से आप क्या समझती हैं, और लेबर वेलफेयर लॉज क्या हैं, लेबर पॉलिसीज क्या हैं, हायरिंग फायरिंग पॉलिसीज क्या हैं, मैटरनिटी लीव की पॉलिसीज वगैरह क्या हैं। तो ये आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन यू हैव टू गैदर स्वाति, राइट? एंड देन व्हाट यू हैव डन इन योर मास्टर्स एंड हाउ डू यू थिंक यू आर सुटेबल फॉर दिस। तो सर मेरा बैकग्राउंड ये है, मैंने ये चीज किया है, इंटर्नशिप मैंने ये किया है। देन इंफॉर्मेशन अबाउट एनएमडीसी और वो कुछ केस स्टडी दे सकता है, जैसे केस स्टडी मैंने दिया। तो आपको उस केस में ये करना है कि सर सबसे पहले मैं इंप्लॉय से बात करूंगी कि जो अपॉर्चुनिटी उसको अभी मिला है वो अपॉर्चुनिटी उसको बाद में मिल सकता है, क्योंकि हमें उनका अल्टरनेट देखना पड़ेगा। पहला सोल्यूशन मैं उन्हीं से पूछूंगी कि व्हाट डू यू थिंक कैन बी द सॉल्यूशन फॉर योर एब्सेंस। तो जो एम्प्लॉय जा रहा है पहली ट्राई वही करेगा सोल्यूशन देने की, आप उससे इंफॉर्मेशन लेंगे। यू विल टॉक टू मैनेजमेंट ऑल्सो, कैन वी रिलीव हिम सर बिकॉज इज वेरी गुड एम्प्लॉय, इतने साल इसने जॉब किया है और हम उसको विद सम लीव वी कैन रिटेन करने के लिए, रिटेनिंग हिम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ इज गोइंग फॉर हायर एजुकेशन ही मे लीव आफ्टर दैट। तो उसको रिटेन करने के लिए ऐसा हो सकता है कि आप उसको लीव विद सैलरी दें, और उसके टाइम पे और क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है, वो कितना कंट्रीब्यूट स्टडीज के साथ कर सकता है। मे बी ही कैन थिंक ऑफ परसुइंग पार्ट टाइम स्टडीज। तो मैं उससे बात करूंगी, मैनेजमेंट से बात करूंगी, एंड देन विल फाइंड आउट सम ऑप्शन। एंड उसकी रिप्लेसमेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है कोई,
the person who can replace him within the organization, then providing training to him through that person, that can also be one of the options. तो सोचो कुछ उस तरीके से अप्रोच करने की ट्राई करो प्रॉब्लम को, राइट? गॉट इट स्वाति? ओके, थैंक यू।